गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन यूनिट 7। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। ये क्या है? एंड्योरेंस इज अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस विच इज डिटरमाइंड by the following psychological factors. Aerobic capacity. To perform an activity continuously, energy is required by the muscles which can be supplied by the presence of oxygen. Therefore, the ability of the organism to maintain adequate supply of O2 to the working muscles, i.e. aerobic capacity for energy liberation is important for endurance performance. The aerobic capacity depends on the following factors. Oxygen intake is the amount of oxygen which can be taken by the lungs from atmosphere. If this amount is more, then it is better for achieving higher VO2 max. The oxygen intake depends on the vital capacity, which further depends on the lung size, number of active alveoli, strength of the respiratory muscles, size of the chest cavity, etc. Oxygen intake is not a limiting factor for endurance performance in a healthy sports person. इसका मतलब है जो धीरज का निर्धारण करने वाली शारीरिक कारक शारीरिक फिटनेस का एक और महत्वपूर्ण घटक है, जो शारीरिक कारकों की अनुमति देने वाले धीरज द्वारा निर्धारित किया जाता है। एरोबिक क्षमता। लगातार एक गतिविधि करने के लिए मांसपेशियों द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति से आपूर्ति की जा सकती है। इसलिए ऊर्जा मुक्ति के लिए कार्यशील मांसपेशियों i.e. एरोबिक क्षमता के लिए O की विशेष आपूर्ति बनाए रखने के लिए जीव की क्षमता धीरज प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होती है। एरोबिक क्षमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि ऑक्सीजन इनटेक। यह ऑक्सीजन की मात्रा है जो वायुमंडल से फेफड़ों द्वारा ली जा सकती है। यदि यह राशि अधिक है तो उच्च VO अधिकतम प्राप्त करने के लिए बेहतर है। ऑक्सीजन का सेवन महत्वपूर्ण क्षमता पर निर्भर करता है, जो आगे फेफड़ों के आकार, सक्रिय एल्वियोली की संख्या, श्वसन की मांसपेशियों की ताकत, छाती, गुहा के आकार आदि पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन का सेवन एक स्वस्थ खिलाड़ी में धीरज प्रदर्शन के लिए सीमित कारक नहीं है। ठीक है, ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है सीमित कारक नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज़ टू बी transported to the working muscles. The oxygen transport depends on the amount of oxygen which the blood has absorbed from the lungs and the ability of the circulatory system to carry this quickly to the working muscle. The amount of oxygen absorbed into the blood depends on the speed of blood flow through the lungs and on the blood hemoglobin. The concentration of blood hemoglobin, which is around 14-15% in sports persons, cannot be enhanced by training. The transportation of oxygen blood depends on the capacity of the heart. This capacity can be improved through training. Consequently, there is an increase in aerobic capacity. Oxygen uptake. The amount of oxygen which can be absorbed and consumed by the working muscle from the blood is called oxygen uptake. The oxygen uptake depends on the rate of diffusion, which is further determined by the speed of blood flow, temperature and partial pressure of oxygen in the blood and of carbon dioxide in the muscle cell. The speed and amount of oxygen consumption also depends on the number, size and metabolic capacity of the mitochondria and fortunately this can be improved to a certain extent through training. Energy reserves. The aerobic capacity also depends upon the availability of fuel to the muscles
from which energy for the activity is derived. Therefore, the aerobic capacity depends upon the muscles glycogen and sugar level in the blood. If the muscle glycogen level falls below a certain level, then fatigue occurs. तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मीन्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन का आपका ट्रांसपोर्ट होता है, फेफड़ों में रक्त में ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने वाली मांसपेशियों तक पहुंचाना होता है, जो इसका काम होता है। ऑक्सीजन परिवहन ऑक्सीजन की मात्रा एक निर्भर करता है जिसे रक्त फेफड़ों से अवशोषित कर लेता है और इसे कम करने वाली मांसपेशियों तक तेजी से ले जाने के लिए संचार प्रणाली की क्षमता पैदा करता है। रक्त में अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों के माध्यम से और रक्त हीमोग्लोबिन पर रक्त प्रवाह की गति पर निर्भर करती है। रक्त हीमोग्लोबिन की एकाग्रता जो खिलाड़ियों में लगभग 14 से 15% है, प्रशिक्षण द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन हृदय की क्षमता पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण के माध्यम से इस क्षमता में सुधार किया जा सकता है। नतीजा इसका यह है कि एरोबिक क्षमता की इसमें वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन अपटेक ऑक्सीजन की मात्रा जिसे रक्त से कम करने वाली मांसपेशियों द्वारा अवशोषित और सेवन किया जा सकता है, ऑक्सीजन अपटेक कहलाती है। ऑक्सीजन का अपवर्तन प्रसार की दर पर निर्भर करता है, जो आगे रक्त प्रवाह, रक्त में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव और मांसपेशियों कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की गति से निर्धारित होता है। ऑक्सीजन की खपत की गति और मात्रा भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, आकार और चयापचय क्षमता पर निर्भर करती है और सौभाग्य से इन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। एनर्जी रिजर्व एरोबिक क्षमता मांसपेशियों के लिए उपलब्धता जीएफ ईंधन पर भी निर्भर करती है, जहां से गतिविधि के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए एरोबिक क्षमता मांसपेशियां ग्लाइकोजन और रक्त में शर्करा के स्तर पर निर्भर करती है। यदि मांसपेशी ग्लाइकोजन स्तर पर निश्चित स्तर से नीचे करती है, यदि मांसपेशी ग्लाइकोजन स्तर पर निश्चित स्तर से नीचे गिरता है तो थकान हमें होती है।